Hello everyone, I warmly welcome all of you to the next session. In today's session, we are going to start chapter number 2, that is geometric design of highways. In chapter number 1, we have studied different classification of highways, general classification according to Nagpur Road Plan and according to Third Road Development Plan. So basically you know which are the different types of highways and their functions. So for today's session, the chapter second is related to course outcome second, that is implement the geometrical design features of different highways. Right? Implementation means practically performance or specifications they are going to consider while designing road pavement. Geometrical design means each and every component should be designed according to the standard specifications of different highways. So you know basically there are different types of highways. According to general classification, there are traffic flow per day, load carrying capacity, that is tonnage per day, according to class, according to location and function, and according to construction material used. So that was related to general classification of highways. Secondary, you have been seen classification of highways all over India according to Nagpur Road Plan. In that, they are distributed as national highway, state highway, major district road, other district road, and village roads. So these are the different highways. So basically, the idea regarding highways is clear. So we will move further to know component of the highways, their design specifications and standards according to IRC code. In the following image, they're showing you a simple cross section of an highway. This is total a highway. Imagine this is your bed bypass road. Okay. At the end, here you are seeing the slope is given for drain of the rainwater. First component regarding that slope is nothing but your shoulder portion. This portion is called as a shoulder portion where paver blocks may be placed or it is open for resting of the vehicles. Secondary, they are having this one is a carriageway जहाँ पर आपको बिट्यूमिनस रोड दिखता है पूरा. ओके, उसके बीच में ये क्या जा रही है, सेंटर लाइन. दिस कंप्लीट पोर्शन इज योर कैरेजवे पोर्शन. कैरेजवे मीन्स द पोर्शन ऑन विच व्हीकल्स मूव्स. फिर आता है आपका डिवाइडर का पोर्शन एंड अपोजिट डायरेक्शन ट्रैवलिंग. अगेन देयर इज अ पेवमेंट और यू कैन से carriageway, shoulder, right, and side slope. So the image is showing a standard dimension also. Okay, the pavement is maybe asphaltic or a concrete which is based on subbase. subbase मतलब ग्राउंड के ऊपर का जो भी आप फिलिंग पहले प्रोवाइड करते हो उसे पूरी फीलिंग्स को हम बोलेंगे सबबेस, जो कि होती है आपकी सैंड की, ग्रेवल की या स्टोन्स की. So this is a typical cross section of the highway. So likewise, as we said, these are the different components like shoulder, carriageway, divider, again carriageway, shoulder, and here we provide a slope. So likewise, we will study how much the portion or how much is the standard dimensions to be provided for these individual components and how these are going to be designed according to these standard dimensions. Okay. अब ये जो होता है कैरेजवे, ये हो गया आपका पूरा वन लेन. ये जो है ना, 2 और मोर लेन्स. ठीक है. अब इन्हें ये हो गया एक पूरा. अगर ये सेंटर लाइन से डिवाइडेड नहीं है तो इसे हम कहेंगे वन लेन. ओके. अगर यहाँ पे सेंटर लाइन आ जाती है तो वो हो जाता है 2 लेन, 1 and 2. ठीक है. 2 lane road and this is a 4 lane road. Then your bed bypass road is also a 4 lane road. Now they are planning to extend it on a 6 lane roads, right? So likewise, we will study in details. Unit 2, geometrical design of highway.
which carries 16 marks according to curriculum. In this chapter, we are going to study following points. First one, various terms used in highway. जैसे कि क्या क्या हाईवे में टर्म्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं. फर्स्ट रहेगा कैम्बर, सेकंड रहेगा कर्व्स, थर्ड रहेगा इसमें डिजाइन स्पीड. ओके, ये हम लोग वन बाय वन डिटेल्स में देखेंगे. ग्रेडियंट, साइड डिस्टेंस, कर्व्स, वाइडनिंग ऑफ रोड्स, सुपर एलिवेशन एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ हाईवेज इन एम्बैंकमेंट एंड कटिंग. अब ये जो कंसेप्ट है, दिस कंसेप्ट इज रिलेटेड टू योर सर्वे इंजीनियरिंग. इसमें एम्बैंकमेंट मतलब क्या रहेगा, जो भी आपका रोड का फिनिशिंग लेवल आएगा वो ग्राउंड लेवल के ऊपर रहेगा, जहाँ पे आपको फिलिंग करना रहेगा. सो सच रोड विल बी कॉल्ड एज अ रोड इन एम्बैंकमेंट. और कटिंग मतलब ग्राउंड लेवल जो रहेगा आपका फॉर्मेशन लेवल या रोड लेवल से ऊपर में रहेगा. जैसे कि आप हिली एरियाज में रोड कट करके हिल कट करके रोड फॉर्म करते हो, दैट विल बी रोड इन अ कटिंग सेक्शन. So with the help of the images, we will elaborate in detail. Firstly, we will see what is geometrical design. It is the phase of highway design which deals with the visible elements of different highways such as alignment, side distance, etc. is called as geometrical design of highways. ठीक है, I will repeat again. Phase of highway design which deals with the visible elements of different highways such as alignment. Okay, what is the alignment? जो आप लोगों ने सर्वे में भी सीखा है. अलाइनमेंट क्या होती है, जैसे कि इमेज में हमने देखा था सेंटर लाइन. ठीक है, उस सेंटर लाइन को हम क्या कहेंगे, अलाइनमेंट. जो भी पर्सन का एक बैकबोन होता है जो उसकी बॉडी को स्टैंड करता है, स्टेबल रखता है. सो अकॉर्डिंगली द सेंटर लाइन इन अ रोडवे act as a backbone for the road pavement, which is known as alignment. Then side distance, कि कितने डिस्टेंस तक आपको फ्रंट विजिबिलिटी अवेलेबल है, आपके व्हीकल के आगे कहाँ तक आपकी नजर जाती है, क्या क्या ऑब्स्ट्रक्शंस आपको दिखते हैं, कि कौन से व्हीकल्स आपको दिखते हैं. तो वो हो गया वो आपका साइड डिस्टेंस. तो इनका जो भी आपको डिजाइन करना है, ये हो गए एक कुछ दो एलिमेंट. बाकी एलिमेंट्स हम लोग डिटेल में देखेंगे ही. तो अगेन आई विल रिपीट, ज्योमेट्रिकल डिजाइन क्या है, फेज है हाईवे डिजाइन का, जिसमें हम विजिबल एलिमेंट्स जैसे कि अलाइनमेंट, साइड डिस्टेंस एक्सेट्रा को डिजाइन करेंगे विद द स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन, इज कॉल्ड एज ज्योमेट्रिकल डिजाइन ऑफ हाईवे. नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट्स ऑफ ज्योमेट्रिकल डिजाइन ऑफ अ हाईवे. क्यों सीखना है या इसमें हम लोग क्या सीखेंगे. सबसे पहले द अलाइनमेंट शुड बी इकोनॉमिकल, राइट. अलाइनमेंट अगर आपकी विड्थ में कम ज्यादा है, जैसे कि विड्थ अलाइनमेंट हम लोग किसको कहेंगे, सेंटर लाइन. सेंटर लाइन से दोनों तरफ भी रोड कैसा है, इक्वली डिवाइडेड है. यही अगर एक साइड में ज्यादा रहेगा एक साइड में कम रहेगा, तो जिस साइड में ज्यादा है वहां पे आपका एक्सेसिव मटेरियल यूटिलाइज हो जाएगा, जिससे कि आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ेगा. सो फॉर दैट पर्पस द अलाइनमेंट शुड बी इकोनॉमिकल. इकोनॉमिकल मतलब दोनों साइड को आपको इक्वल खर्चा आना चाहिए, आपके बजट में वो बैठना चाहिए. सेकेंडरी, द ग्रेडियंट मस्ट बी इजी एंड सुटेबल. ठीक है, जैसे रोलर कोस्टर रहता है वैसी ग्रेडियंट आपका नहीं होना चाहिए. अब यहाँ पे आया है नया कंसेप्ट, दैट इज ग्रेडियंट. पहले क्या था, अलाइनमेंट. अलाइनमेंट हम किसे कहेंगे, रोड की सेंटर लाइन को हम अलाइनमेंट कहेंगे. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका ग्रेडियंट. ग्रेडियंट हम किसे कहेंगे, जब आप रोड पे से गुजरते हो या व्हीकल आप जब चलाते हो तब आपने फील किया होगा आपको स्लोप आता है रोड में, देन अगेन अप्स आते हैं, डाउन्स आते हैं. तो ये अप एंड डाउन जो रहता है अलोंग द लेंथ ऑफ द रोड इज कॉल्ड एज ग्रेडियंट. रोड प्रोजेक्ट जब आपने परफॉर्म किया होगा एडवांस सर्वे में, तो तब आपने एक रोड का सर्वे किया था, राइट, जिसमें आप लोगों ने एक फॉर्मेशन लेवल फाइंड की थी और उसके हिसाब से आपने क्वांटिटी ऑफ राइज एंड क्वांटिटी ऑफ फॉल निकाला था, बराबर है. तो उस रेट ऑफ राइज एंड फॉल को हम कहेंगे ग्रेडियंट. अब ये कैसा होना चाहिए, इजी होना चाहिए, सूटेबल होना चाहिए. सडन स्लोप या सडन राइज नहीं आना चाहिए,
स्टीप स्लोप या स्टीप राइज नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपको ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है या कभी कभी एक्सीडेंटल सिचुएशंस भी क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट है ऑन स्ट्रेट रोड प्रोवाइड एडिक्वेट चेंबर्स। ठीक है, जैसे अगर हम लोग पहले ही डिजाइन करेंगे तो हम चेंबर की लोकेशंस भी प्रोवाइड प्रॉपरली कर पाएंगे ताकि जो भी सरफेस वाटर है वो क्विकली ड्रेन ऑफ हो जाए और इंटरनली भी पानी ब्लॉक ना हो, वो इजीली स्मूथली पाइप में से आपके आउटलेट तक पहुंच जाए। सो ऑन स्ट्रेट रोड फॉर प्रोवाइडिंग एडिक्वेट चेंबर। एडिक्वेट मतलब प्रॉपर पोजिशन ऑफ अ चेंबर। नेक्स्ट है कर्व्स प्रोवाइडेड मस्ट बी स्मूथ एंड इजी। कर्व्स क्या होते हैं? एट द टर्निंग पॉइंट व्हाटएवर द प्रोविजंस आर देयर आर कॉल्ड एज कर्व्स। तो वो भी कैसे होने चाहिए? स्मूथ होने चाहिए, इजी होने चाहिए, राइट? वहां पे स्किडिंग इफेक्ट नहीं होना चाहिए या व्हीकल ओवरटर्न नहीं होना चाहिए, उस हिसाब से आपका कर्व का डिजाइन होना चाहिए। देन टू प्रोवाइड प्रॉपर रोड सिग्नल, रोड के ऊपर सिग्नल का लोकेशन प्रॉपरली प्रोवाइड करने के लिए भी आपको ज्योमेट्रिकल डिजाइन कंप्लीट होना जरूरी है। ठीक है, अगर प्रॉपर सिग्नल प्रोवाइडेड नहीं रहेंगे तो ट्रैफिक फ्लो को आप प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाएंगे। देन एट द सेम टाइम टू कीप व्यू ऑन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। अगेन, अगर कंस्ट्रक्शन करते करते या करने से पहले आपको अगर ध्यान में आता है कि टेंडर, जैसे एक टेंडर इशू होता है। टेंडर क्या होता है कि मुझे एक काम करवाना है रोड का और मुझे लगता है इसको 1 लाख रुपए लगेंगे। ओके, फिर आपने इसके ऊपर क्या किया? डिटेल क्वांटिटी निकाली, सर्वे किया, इसको एग्जीक्यूशनिंग स्टार्ट किया। फिर आपके ध्यान में आया कि एक्सपेक्टेड एक्सकैवेशन 2 मीटर का है बट एट साइट कंडीशन इट शुड बी गेट एक्सटेंडेड अप टू 4 मीटर। तो वहां पे क्या हो गया? कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। तो इस लोकेशन पे अगर आपके पास प्रॉपर एस्टिमेट्स रहेंगे जो कि आपके प्रॉपर डिजाइन पे डिपेंड करेंगे तो आपको उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट ध्यान रखने में आसानियत होगी या इजी जाएगा, राइट? सो फॉर एस्टिमेटेड कॉस्ट you need a proper design of a road. To calculate estimated cost, you need a proper geometrical design of a highway. Okay, आ गया है तक समझ में? Again I will revise one by one. What is a object? The alignment should be economical. Alignment means center line of a road. The gradient must be easy and suitable. Gradient means rate of rise and fall along the length of the roadway is known as gradient, which should be easy and suitable for any kind of vehicle. On straight road, to provide adequate chamber or proper chamber locations. On curves, it should be smooth and easy. Then to provide proper road signals. Then at last, at the same time, to keep view and estimated cost of the project, which should be within the budget. Okay, next हम लोग देखेंगे रोड के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, सो इस इमेज में जैसे हमने फर्स्ट इमेज में देखा था, ये क्या है? आपका पेवमेंट है पूरा पूरा, राइट? इसे हम क्या कहेंगे? पूरा का पूरा ये हो गया आपका कैरेज वे। अब ये पेवमेंट आपका बिट्यूमन का हो सकता है या फिर यहाँ पे कंक्रीट भी हो सकता है। ठीक है, इस पेवमेंट को हम कहेंगे कैरेज वे। फिर इसके बाद क्या आता है? आपका शोल्डर पोर्शन। ओके, तो आप कैरेज वे पेवमेंट पोर्शन को भी कहो या फ्रॉम एंड ऑफ वन शोल्डर टू द एंड ऑफ सेकेंड शोल्डर और फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द शोल्डर विल आल्सो नोन एज अ कैरेज वे। ओके, और एग्जैक्टली जितने इसके ऊपर से व्हीकल्स गुजरेंगे उसको आप कहेंगे ट्रैफिक लेन्स। ओके, नेक्स्ट आता है आपका, ये क्या है? यहाँ पर फिर हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे। यहाँ पर है शोल्डर, देन यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक ट्रैफिक लेन, फिर अगेन शोल्डर। सो फ्रॉम स्टार्ट ऑफ लेफ्ट साइड शोल्डर एज to end of the right side shoulder edge will be called as carriageway. Okay, then next आता है, यहाँ पे हम लोग स्लोप प्रोवाइड करते हैं और थोड़ा सा गटर टाइप यहाँ पे आपको जो दिख रहा है that is called as a side drain, मतलब सरफेस पे का वाटर बह के इसके जरिए यहाँ आएगा स्लोप के जरिए और यहाँ से फिर वो
नियरर चेम्बर तक। नेक्स्ट देयर इज द फिलिंग इज शोइंग इन द इमेज, राइट। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे कहा था पेवमेंट है या आपका ट्रैफिक लेन है विच इज मेड अप ऑफ अ बिटुमिनस रोड और कंक्रीट रोड। उसके नीचे जो हम लोग छोटे छोटे एग्रीगेट्स और मुरुम की लेयर प्लेस करेंगे उसे हम कहेंगे बेस कोर्स। एंड उसके नीचे सपोर्टिव जो बोल्डर्स मतलब जो स्टोन्स आप लोगों ने बाउंड्री वॉल में देखे होंगे जिसकी साइज 40 mm से लेके 80 mm तक की रहती है, उसे हम लोग अगर यहाँ पे प्लेस करते हैं जस्ट अबव द सॉइल। ये क्या है, यहाँ पे पूरा सॉइल है, नेचुरल ग्राउंड, जिसको हम लोग कॉम्पैक्ट करके फिर ये बोल्डर्स की लेयर प्रोवाइड करते हैं। इस बोल्डर की लेयर को हम कहेंगे सब बेस। उसके ऊपर छोटे एग्रीगेट्स जो कि बिलो 40 mm रहेंगे उसे कहेंगे बेस कोर्स। और जो आपका फाइनल स्टेज रहेगा बिटुमेन या कंक्रीट दैट विल बी कॉल्ड एज वियरिंग कोर्स। ओके, फिर से हम लोग इसको रिवाइज करेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, आपका ट्रैफिक का लेन है जो कि बिटुमेन से रहेगा या कंक्रीट का रहेगा। अगेन उसे हम क्या कहेंगे, वियरिंग कोर्स। ओके, लेन अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट and wearing course according to the provision of material in that component. This is a one component. Second component is shoulder portion just besides from both the sides left or right, and right. In this shoulder portion we provide a footpath or a drainage line or poles of signals or signs. तो इसे हम कहेंगे shoulder portion. shoulder portion के बाद दोनों साइड से आपको दिख रहा होगा ये स्लोप एंड साइड ड्रेन। यहाँ से रहता है स्लोप और थोड़ी डिस्टेंस के ऊपर हम लोग ये ड्रेन प्रोवाइड करते हैं। ये दोनों के एंड में रहता है, साइड्स में रहता है, इसे हम कहते हैं साइड ड्रेन। जिसमें क्या या जिसका पर्पस क्या होता है, सरफेस पे का वाटर स्लोप के जरिए शोल्डर के जरिए आपका आएगा साइड ड्रेन्स में और यहाँ से वो अगेन इट विल बी रिमूव्ड। शोल्डर फ्रॉम लेफ्ट साइड एज से लेके राइट साइड एज तक जितना पूरा पोर्शन को हम कहेंगे कैरेज वे। ओके, आगे आपके ध्यान में कैरेज वे, ट्रैफिक लेन, पेवमेंट, वियरिंग कोर्स, आपका सब बेस, बेस कोर्स, नेचुरल फॉर्मेशन इज नथिंग बट योर ग्राउंड। नेक्स्ट है, ये है आपका रोड, राइट, ऐसा दिखता है। अब यहाँ पे क्या है, ना शोल्डर है, ना साइड ड्रेन है, ना कुछ है, ये रोड हो गया। और ये सारे कंपोनेंट्स आपके कंसिडर किसमें होंगे, हाईवे में कंसिडर होंगे। ओके, रोड में भी शोल्डर्स रहते हैं बट हम लोग साइड ड्रेन्स वगैरह उतना प्रोवाइड नहीं करते हैं क्योंकि उसमें स्पेस अवेलेबल नहीं होती है। सो इन दिस इमेज यू कैन सी दिस इज योर रोड और दिस में बी कंसिडर एज योर ओडीआर, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड भी हो सकता है। अब इसमें ये जो कंटिन्यूअस लाइन रहेगी दोनों साइड से इसे कहा जाएगा एज लाइन। इस सेंटर लाइन को आप कहेंगे अलाइनमेंट, ठीक है। अब इसका मार्किंग का स्टाइल अलग है, देखिए एज लाइन है, कंटिन्यू है, व्हाइट कलर है एंड सेंटर लाइन जो है आपकी डॉटेड लाइन है विच इज ऑफ अ येलो कलर। ओके, और यहाँ से लेके यहाँ तक के पोर्शन को हम क्या कहेंगे, कैरेज वे इन दिस केस और ट्रैफिक लेन। अब ट्रैफिक लेन इसमें क्या हो जाता है, दो लेन फॉर्म हो जाती है। अगर ये सेंटर लाइन नहीं होती थी तो दिस कंप्लीट विल बी कॉल्ड एज अ सिंगल लेन। जहां आपकी सेंटर लाइन आ गई रोड में तो वो हो गया टू लेन, लेन 1 एंड लेन 2। सो एज वी कैन हियर टू लेन विथ वन वे ट्रैफिक, मतलब यहाँ से सिर्फ इधर ही जाएंगी गाड़ियां। ओके, वही अगर होता था आपका टू लेन टू वे ट्रैफिक तो क्या होता था, यहाँ लेफ्ट साइड से हम लोग सीधे जाते थे, राइट साइड से अपोजिट डायरेक्शन में आते थे। आ रहा है समझ में? फिर से एक बार मैं रिकॉल करती हूँ। ये क्या हो गया आपका, वन लेन and one lane. So complete is two lane when your center line is there. So the carriageway will be called as two lane. Okay? और यहाँ पे एक ही डायरेक्शन से जाने वाले व्हीकल्स होते थे तो उसे हम क्या कहते थे, टू लेन ट्रैफिक, सॉरी टू वे रोड और टू लेन ट्रैफिक। और यहाँ पे अगर आपका दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में व्हीकल्स आते थे, जैसे यहाँ से जा रहे हैं और यहाँ से आ रहे हैं, तो क्या होता था, टू लेन ट्रैफिक टू वे रोड, टू लेन ट्रैफिक वन वे रोड, टू लेन ट्रैफिक टू वे रोड। वन वे एक ही डायरेक्शन में जाना, टू वे अपोजिट डायरेक्शन से आना भी हाफ साइड से। आ रहा समझ में? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे
अ रोड इन एम्बैकमेंट। क्रॉस सेक्शन हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या है इस इमेज में। इतना आता है आपका, क्या है ये, कैरेजवे है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, शोल्डर्स दिख रहे हैं। ये हो गया आपका साइड स्लोप। देन आता है आपका एक हॉरिजॉन्टल पोर्शन, उसे हम देखेंगे डिटेल में क्या कहते हैं। तो फिर आता है आपका साइड ड्रेन्स, राइट। तो यहाँ से हर एक इसके कंपोनेंट को आप लोगों को नाम दिया। ये पूरा होता है आपका हाईवे, ठीक है। एक्चुअली दिखता है आपको सिर्फ इतना ही कि पेवमेंट दिखेगा, डिवाइडर दिखेगा, दोनों साइड से शोल्डर पोर्शन दिखेगा, बट उसके बाद भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो हम लोग क्रॉस सेक्शन में देखते हैं, जैसे कि साइड स्लोप्स, साइड ड्रेन एंड और बाउंड्री स्टोन। यहाँ पे क्या रहती है, फाइनल बाउंड्री की, जिससे आगे कुछ भी डेवलपमेंट चांसेस नहीं रहेंगे। अब ये टोटल जो एक्सटेंडेड लेंथ रहती है, इट इज कम्प्लीटली फॉर अ फ्यूचर डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सी नेचुरल एग्जांपल। अगर आपको देखना है, ये क्या हो गया आपका, पूरा पूरा साइड स्लोप रहता है। फिर यहाँ पे आप लोग क्या करते हो, छोटी सी नाली बना देते हो, जिसे हम कहते हैं कि साइड ड्रेन, जिससे कि पानी आके यहाँ एक्यूमुलेट होगा और वहां से नियरर फार्म है या नियरर कोई भी जगह है तो उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, या फिर यहाँ से ये अगेन स्लोप के जरिए बह जाता है, रोड सरफेस के ऊपर एक्यूमुलेट नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्रॉस सेक्शन है कटिंग में, ठीक है। ये क्या था, एम्बैकमेंट में। एम्बैकमेंट को हमने क्या कहा था, जहाँ पे आपका नेचुरल ग्राउंड लेवल नीचे रहेगा एज कम्पेयर टू द फॉर्मेशन लेवल। ये क्या है, फिनिश्ड लेवल, फॉर्मेशन लेवल आफ्टर कंस्ट्रक्शन। जो फाइनल लेवल आपको अचीव होती है, दैट शुड बी एट अ हायर एज एज कम्पेयर टू द नेचुरल ग्राउंड। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ रोड्स विल बी कॉल्ड एज रोड इन अ एम्बैकमेंट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रोड इन अ कटिंग। सी इन द इमेज, कैरेजवे कहाँ पर है, या फॉर्मेशन लेवल जो है आपकी कहाँ है, नीचे है। ये क्या है, यहाँ पर आपका ग्राउंड है, ठीक है। नेक्स्ट इन द इमेज सी, ऐसा होता है कि यहाँ पे ग्राउंड कैसा है, देखिए हायर है, और यहाँ से कट करके आपने रोड फॉर्म किया है, तो द रोड विल बी कॉल्ड एज इन अ कटिंग सेक्शन। जहाँ पे कट करना है वहां पे हो गया रोड इन कटिंग, जहाँ पे फिल करना है वहां हो जाएगा रोड इन फिलिंग। सी हिली रीजन्स में भी हम लोग रोड ऐसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, जहाँ पे आपका नेचुरल ग्राउंड होता है हायर लेवल पे और आपका रोड फॉर्मेशन होता है लोअर लेवल पे। अगेन फॉर railway track we go for this method. So this railway track cross section is also called as in a embankment cross section. Did I write? No, it is in a cutting, क्योंकि कैसे, यहाँ पे आपने कट करके उसको फॉर्म किया है, ठीक है। नेक्स्ट है various terms used in a highway. So from here up to here we have been seen cross section कि कौन सी कंडीशन रहती है। एक रहती है एम्बैकमेंट कंडीशन, एक रहती है आपकी कटिंग कंडीशन। एम्बैकमेंट है मतलब क्या है, ग्राउंड लेवल आपका नीचे रहेगा, रोड फॉर्मेशन लेवल ऊपर रहेगा। कटिंग सेक्शन में क्या रहेगा, ग्राउंड सेक्शन आपका ऊपर हायर एलिवेटेड जगह पे रहेगा और वही आपका रोड का फॉर्मेशन लेवल उससे लोअर लेवल पे रहेगा। अब यहाँ से हम लोग रोड के या हाईवे के एक एक टर्म को या एक एक कंपोनेंट को डिटेल में स्टडी करेंगे, जिसमें के आते हैं कैम्बर, कर्व, डिजाइन स्पीड, ग्रेडियंट, साइड डिस्टेंस, कर्व्स, वाइडनिंग ऑफ रोड्स, सुपर एलिवेशन, ठीक है। तो ये हो गए आपके डिफरेंट टर्म्स जिसको आपको डिटेल में स्टडी करना है with their function, with their definition and with their IRC specifications also. So firstly we will start with the camber. Camber क्या होता है, the convexity provided to the surface of the carriageway is called as camber और cross slope, ठीक है। अब इमेज में आपको समझ में आएगा, कॉन्वेक्सिटी मतलब फुलाना, सेंटर से रोड को अलाइनमेंट को फुलाना। अब ये फुलाते कैसे है, हवा नहीं भरते रोड पे, क्या करते हैं अलोंग द अलाइनमेंट, जैसे कि सेंटर लाइन के अलोंग से क्या रहेगा, हाइट ऑफ फिलिंग मटेरियल ज्यादा रहेगी और एजेस की तरफ से वो कम कम होती चली जाएगी। इस प्रोविजन को कहते हैं कॉन्वेक्सिटी प्रोविजन ऑन द surface of the carriageway is called as camber. The rise given to the center of carriageway above its edges on straight portion of a road is called as camber or cross slope. इन दोनों में से आप कोई भी डेफिनेशन यूज कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज मोर प्रेफरेबल, क्योंकि कॉन्वेक्सिटी आपको मीनिंग उसका याद रहेगा, सो दैट डेफिनेशन विल बी क्रिएटेड वेरी इजीली। ये क्या है अगेन, सी इन द इमेज,
ये दोनों साइड से है आपके शोल्डर पोर्शन, इतना अगेन क्या है आपका पेवमेंट। तो यहाँ पे क्या किया है उन्होंने, जैसे ये सेंटर लाइन का टॉप मोस्ट पोर्शन हो गया, या सेंटर लाइन पॉइंट पकड़ के चलो इसको, यहाँ पे हमने क्या किया 10 सेंटीमीटर की फीलिंग की, और इसे हम एजेस की तरफ कम कम करते चले गए। सो दिस फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज कैम्बर और प्रोवाइडिंग कॉन्वेक्सिटी। ठीक है, ये होता है आपका कैरेज का कैम्बर। सेंटर में कैसा है, हाईएस्ट है, और एजेस की तरफ क्या होते चला जा रहा है, कम कम होते चला जा रहा है। ठीक है, अब रोड के ऊपर आप लोगों ने ये दो फिनोमिना देखे होंगे या कभी कभी फील किए होंगे। फर्स्ट केस में क्या दिख रहा है, यहाँ हम जो बोलेंगे इट्स अ स्ट्रेट स्लोप, ग्रेजुअल डिक्रीजिंग स्लोप, इसे कहा जाता है वन साइडेड स्लोप, और इसे कहा जाता है सेकंड इसमें कैम्बर, प्रोविजन ऑफ अ कैम्बर, जिसमें क्या है सेंटर से दोनों डायरेक्शंस में स्लोप इक्वली वैरिंग स्लोप प्रोवाइड किया है। ठीक है, ये रहेगा आपका कैम्बर पोर्शन प्रोविजन, और ये लास्ट में रहता है कर्व। ये यहाँ पे आपको फुटपाथ में देखे होंगे आप लोगों ने, ब्लैक कलर के, व्हाइट कलर के या येलो कलर के स्टोन्स प्रोवाइड करते हैं, उसे हम कहते हैं कर्व। अब इस कैम्बर का पर्पस क्या है, क्यों प्रोवाइड करना है? सबसे पहले टू ड्रेन ऑफ द रेन वाटर फ्रॉम द रोड सरफेस एज क्विकली एज पॉसिबल। रोड सरफेस के ऊपर से पानी को क्विकली रिमूव करने के लिए हम कैम्बर प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि क्या है आपके इमेज में देखिए सेंटर पोर्शन क्या है, हायर एज पे है, तो वाटर कैसे बहेगा, हायर एज टू लोअर एज। So for this purpose we provide camber. Second, to regulate the vehicles to proper lane, right? See again in the image, ये क्या हो जाएगी फिर, फर्स्ट लेन सेकंड लेन। सो व्हीकल्स को प्रॉपर लेन में ट्रैवल करने के लिए भी हेल्प करेगी। नेक्स्ट, टू इम्प्रूव द आर्किटेक्चरल अपीयरेंस ऑफ द रोडवे, again it will improve the look or the appearance of the roadway. And lastly, to prevent the entry of surface water into the subgrade soil or into bituminous pavement layers. As we said, the water will be quickly drained off, so it will not accumulate on the surface, and again it will prevent entry of that water into the subgrade soil. What will happen if this water will get entered into the subgrade soil? It will start losing the material and start the failure in the pavements by forming the cracks. So for these purposes, we need to provide cambers. Next, there are types of cambers as per IRC recommendations. कौन से टाइप्स रहेंगे, जिसमें कि हम देखेंगे कंपोजिट कैम्बर, स्लोप्ड और स्ट्रेट कैम्बर, टू स्ट्रेट लाइन कैम्बर एंड बैरल कैम्बर। ठीक है, पर्पसेस अगेन आई विल रिकॉल द पर्पसेस। क्या है पर्पसेस? टू ड्रेन ऑफ द रेन वाटर फ्रॉम road surface as quickly as possible. Second, to regulate the vehicles to proper lane, to improve the architectural appearance of the roadway, to prevent the entry of surface water into the subgrade soil or into the bituminous pavement layers. And further we will see the types of camber according to IRC recommendations. So all these types we will see one by one in detail in next session. You can ask for queries for today's session. Thank you.